that Yes, the subject like this tribes, how you convince the producers, the main the techniques, what are the techniques to that is produce what. a dark cinema, and then also you convince the producer because you Yeah, yeah. The producer is also in line with that kind of uh, a social service person where he wants to do a meaningful movies. So when I told him the movie, and then he got uh, impressed, and then he said, "Let's go with it." sir, thank you so much, sir. Actually, the filmmaker like this So I want tribes. to call upon my producer. दोस्तों ऐसे प्रोड्यूसर्स और ऐसे राइटर्स ऐसे डायरेक्टर्स अगर है तो आज ट्राइब्स की जो बात है तो आज के डेट में 2025 के युग में आप देखोगे कि आज भी ना वहाँ पे मोबाइल फोन्स है, ना वहाँ पे खाने की सुविधा है, ना लाइट्स है। लेकिन आप देखेंगे कि जब भी इलेक्शंस आते हैं तो वहाँ पे वोटिंग्स के लोग पहुंच जाते हैं, उनकी वोटिंग राइट्स में नाम वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन आज भी वो लोग ये अत्याधुनिक टेक्निकल वर्ल्ड से बहुत दूर है। और वहां पे आप देखोगे कि जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं, खाने की सुविधा, पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें, मेडिकल फैसिलिटी, देयर इज नो मेडिकल फैसिलिटी। 2025 दे आर सफरिंग फ्रॉम द लॉट्स ऑफ थिंग्स। और इस सारे प्रॉब्लम्स को सर ने जो कैमरे में कैद किया है, तो वी आर वेरी थैंकफुल सर, you submitted your So movie much. You have in, to and thanks you so much sir, you produced this movie, and the director like this, you supported, and because of your support only this subject is going to the this year Cannes. We are decided to screen your movie in Cannes Film Festival, because I'm the online head of the my Wingsword Entertainment company, the first Indian company who started the short film corner in Cannes. And from the 450 films, we selected only 14 films to screen there, and we are thankful. जो क्रिएटिव माइंड्स और मीडिया की तरफ से फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में और क्यों जरूरी है आजकल के समय में फिल्म फेस्टिवल कराना? हाय, थैंक यू। मेरा नाम स्वाति है और मैं कहना मैं कहना चाहूंगी कि फिल्म फेस्टिवल्स बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि फिल्म शोकेस करने का मौका मिलता है, इसलिए भी कि लोग आते हैं, बहुत सारी चीजें जानते हैं, सीखते हैं। अगर कितने क्रिएटिव माइंड्स हैं हमारी सोसाइटी में जिनको कभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है खुद को एक्सप्लोर करने के लिए, दूसरे लोगों को जानने के लिए, बहुत कुछ सीखने समझने के लिए। एंड मैं कहूंगी कि सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इस तरीके के फिल्म फेस्टिवल्स को ऑर्गेनाइज करके, एंड आई विश गुड लक। आपका क्या योगदान है? मेरा योगदान तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस टीम, बस टीम को कनेक्टेड रखना और थोड़ा अपने क्रिएटिव इनपुट्स देना, यही, ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। Not yellow elephant. Sorry? Our film name is Igua. Igua. Yes. Can you So first let me finish my speaking and then you can, right? Andarki namaskaram. Greetings you, all of you. I am a director of this film Igua and my name is VK Raju. I am a director of this film. So I am here today after receiving an award from Creative Minds of India for a best feature film, and I am deeply humbled with this. Our Igua film is not just a film, it is a journey into the world of humanity, where a man has a bond with the nature and their beliefs. So, and I am very honored to receive this award as a best, for a best feature film. And I thank the jury of this film festival for recognizing this small film from a tribal village. And this award just, you know, it goes to all the tribal communities who are living far away from the modern societies and in peace and in simplicity. So I thank you all for that. And next, I must thank my producer, Purna Bhattu, who has trusted in me and my film. Though it is a different
from a normal, regular movies. So he believed in us, and thank you so much for him. And then I thank my creative, incredible people, especially my cinematographer and musician, who has given a soul for this a movie. And we are proud to say that not only in this film festival, wherever we applied or submitted our movie, it got recognition. It started from a small village and story, and then it took a wings to travel across the world. So our film Igwa has been receiving a lot of recognition from all over the world, and we are proud to say that. And next, above all, I want to take a moment to appreciate the creative minds that they have well planned and executed and then hosted. So we are congratulate them. Our question is that Yes. in this commercial world, Yes. so lots of commercial movies are making. Yes. So why you selected the tribe subject, which is far away from the eyes of society? No, we wanted to do a meaningful movies, which will mean to the society, and we wanted to be a little different from the regular movie makers. So we have attempted that, and moreover, we didn't make it, like it is not a completely an art kind of a movie. It has a commercial elements too. We have blended the commerciality with the great message. It is a funny. The Yellow Elephant, and this content is talking about the animal welfare. And in India, south side of India, there's so many peoples hunting the animals like deer, elephant, tigers, monkeys, and so on. So they are using the country bomb like Autukai, made by um, um, gunpowder and some nails and so and so, making the bomb to damage the creatures to using the for getting the meat. So we are talking about that, saving the animals. That's it. If you ask any questions, I am. Sir, how many years you have taken in Yeah. this for writing this script? Okay. Basically, I'm a cinematographer. I did 4 or 5 movies in Tamil film, like Sababadi, and so many films. I take 6 to 9 months to do the script, and I am talking so many peoples to what is happening in the deep inside of the forest to get the details. And sir, as a producer, which producer you are? Yeah, he is the producer. Sir, how you convinced on this type of a social subject? How the recovery outcomes? அவர் என்னன்றா இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க எப்படி ஒத்துக்கிட்டீங்க நீங்க தமிழ்ல சொல்லுங்க. Have you taken the risks on like this sensitive subject? இந்த படத்தை எப்படி எடுத்தீங்க? Tamil. தமிழ்ல சொல்லுங்க. இப்போ பாத்தீங்கன்னா சமுதாயத்துல பெண்கள் கற்பழிப்பு, குழந்தைங்க கற்பழிக்கிறது இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அதை கேட்கறதுக்கு நிறைய மீடியாக்களும் பொலிட்டிக்கலும் அரசாங்கமும் செயல்பட்டு இருக்கு. ஆனா இந்த அவுட்டு கைன்னு சொல்லிட்டு ஃபாரஸ்ட்ல நடக்கிற இந்த மாதிரி சட்டத்துக்கு விரோதமான ஒரு தொழிலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க. இதை கேட்கறதுக்கு அவ்வளவா யாருக்கும் விழிப்புணர்வு இல்லை. அதனால இந்த கதையை நான் அவரு சொன்ன போது நான் முன் வந்து எடுக்கலாம் சொல்லிட்டு சார். दोस्तों, ये जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया और सेव इंडियन सिनेमा और सेव नेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है, आज भारत देश के हर एक कोने से हम लोग ने एक एक फिल्म मेकर और एक एक ऑथर चुने हैं, और ये सब लोग के आप सब्जेक्ट देखोगे ना, सबसे एंटीक और यूनिक है। अभी देखिए कि ये किसी लोग पता ही नहीं है कि जो जानवर की किलिंग की जाती है, एनिमल्स किलिंग्स का जो गन पाउडर के लिए यूज किया जाता है, उसके अलावा जो जिस तरीके की उसका मिसयूज होता है, और उसको आज के डेट में उस सब चीज को साइड में रख के आज पॉलिटिशियन लोग हमको धर्म और मजहब के ऊपर लड़ा रहे हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो, और उस डाइवर्जन की वजह से हमारा मेन मुद्दे से ध्यान भटक जाए और लोगों की जीने की जो बेसिक नीड्स है और जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उससे हम साइड में हट जाए।
तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है ऐसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लोगों ने। इसके लिए हम लोग ने हर राज्य से एक एक लोग चुने हैं। ये हर राज्य की समस्या अलग अलग है। तो थैंक यू सो मच मीडिया कि आप लोग ये कवर कर रहे हो, आप इनको लोगों तक पहुंचाइए ताकि हम सारे भारत देश के सारे लोग मिलकर हम अपने कारवा बनाए, ताकि सत्ता किसी की भी आए लेकिन हमारे पे कोई रूल ना कर पाए। थैंक यू सो मच सर कि you submitted your movie in Creative Minds of India and Seven Indian Cinema, Seven Nation, and the filmmakers like you. This is a very needful for today's world to showcase the social problems, sir. है ना? Thank you. सर सबसे पहले तो बधाई आपकी फिल्म को जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हुई थी फिल्म फेस्टिवल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? बताइए, अपने जो ट्रेलर आपने दिखाया लोगों को काफी पसंद आ रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये फिल्म एक रोमांटिक हॉरर फिल्म है, म्यूजिकल फिल्म है। मतलब यहाँ हमने हॉरर ऑडियंस को भी कवरेज करा है, लव स्टोरी भी है। उसके अलावा म्यूजिकल इसको हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करा है। और सस्पेंस तो मतलब आपको हर 10-15 मिनट में सस्पेंस मिलेगा। इंटरवल तक आप समझ नहीं पाएंगे फिल्म कहाँ जा रही है। हॉरर फिल्मों की बात करें तो आजकल बॉलीवुड में कम हॉरर फिल्में बन रही है सर, और जो बन भी रही है उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ऑडियंस की तरफ से। क्या कुछ कहना चाहिए? क्या हॉरर की ऑडियंस अलग ही है। हॉरर फिल्म के साथ अगर कॉम्बिनेशन मिलाया जाए तो ऑडियंस है, और वो फिल्म चल भी रही है। जैसे स्त्री आई, वो भी फिल्म आई, तो उसका तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसका भी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। फिल्म गाने से गाने के बारे में बात की जाए तो आप स्टार कौन और फिल्म के गाने कैसे हैं? स्टार कास्ट में हमारे पास देव शर्मा है, हेरी जोश है, आपके हेमंत पांडे हैं, अलीशा फेरर है, स्मिता आचार्य है, और सिंगर सब A+ लेवल के हैं। पलक मुछाल का एक सॉन्ग है इसमें, शबाब सबरी का एक सॉन्ग है। उसके बाद अल्तमश फरीदी, सलमान अली, सब स्टार सिंगर्स हैं। रिलीज से क्या पता है कि रिलीज हम प्लान कर रहे हैं इसको मार्च के आसपास प्लान कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में, और करीब करीब 500 थिएटर की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे सर, जिसके ऑर्गेनाइजर है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया के, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस क्रिएटिव माइंड के बारे में कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि जो छोटे मेकर्स हैं वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और इनके माध्यम से उनको एक स्टार रेटिंग मिलती है, और इससे फिल्म के प्रमोशन में काफ़ी योगदान मिलता है। तो ये ऐसी एक्टिविटी करते रहें, और छोटे मेकर्स को, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है छोटे मेकर्स को कि थिएटर नहीं मिलते, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। तो मैं चाहूँगा कि मतलब ये एक ऐसा मिशन उठाएं कि मतलब जो छोटी फिल्में हैं तो थिएटर्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले, तो लोग वहाँ तक पहुँचे। जब तक फिल्में नहीं देखेंगे वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, जब तक हमारी फिल्म के बारे में मालूम कैसे। ओके, हाय, मेरा नाम मौसमी है। क्रिएटिव माइंड्स इज लाइक मेरे लिए ऐसा हो गया कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि सडनली मुझे एक कॉल आएगा और ऐसे बोला जाएगा कि आपका फिल्म सिलेक्ट हुआ है, और सिलेक्ट के बाद सडनली बोला कि आपकी फिल्म विनर है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दिस प्लेटफॉर्म कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दिया, मेरी फिल्म लोगों तक पहुंच पाई। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज शॉर्ट फिल्म बनाते हैं जब हम ऐसा सोचते नहीं है कि ये किसी तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, क्या हो पाएगा, बस क्योंकि हमें मन होता है कुछ अच्छा करने का और हम बस बनाते हैं उसको। तो थैंक यू क्रिएटिव माइंड्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। फिल्म के बारे में बताइए। मेरी फिल्म ड्रामा है, और ये एक्चुअली में वुमेन ओरिएंटेड है। इंडिया में आप सबको पता ही होगा कि लड़कियों को दाह संस्कार करने, लास्ट राइट्स करने की परमिशन नहीं होती है। आजकल होने लगी है स्लोली, बट फिर भी ऐसा बहुत कॉमन नहीं है, सब नहीं कर पाते हैं। ये एक्चुअली में मैं खुद नहीं कर पाई थी, तो वो मेरे दिल में था कि एक दिन मैं ये करूं। ऑफ कोर्स 10-12 साल पहले ये अपॉर्चुनिटी नहीं था मेरे पास कि फिल्म के थ्रू इसको दिखा पाऊं। अब इनिशिएटिव लिया है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हमारे पास में जो कॉन्टेक्ट है उसके जरिए हम इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाए। इसलिए हम लोग ने सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ये एक अभियान शुरू किया है, जिसमें हम लोग सिर्फ सामाजिक मुद्दे पे फिल्में करने वाले फिल्म मेकर्स को ही वर्ल्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म तक लेके जाएंगे। और इसके लिए जो कुछ भी मेरे से हो पाएगा सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन की तरफ से,
तो वो मैं करूंगा। और जब तक ऐसे फिल्म मेकर है तब तक जो हमारे समाज में जितनी भी तकलीफें हो रही है, जो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सिनेमा के माध्यम से उजागर करने की जो कोशिश, के लिए मैं काफी आभारी हूँ। सर ऐसे क्या जरूरत पड़ी कि आपको ये मुहिम चलानी पड़ी, सेव इंडिया सेव सिनेमा, क्या इसके बारे में बताइए। ऐसे कब ऐसा ख्याल आया कि इस तरह का मुहिम चलाया जाए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है मीडिया ने, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर आजकल बहुत सारी फाइल्स बन रही है, ये फाइल्स वो फाइल्स, और जिसके अंदर हमारे हिंदुस्तान के अंदर का जो भाईचारा है ना, वो खत्म किया जा रहा है। क्योंकि हमारे इस देश के लिए वीर अब्दुल हमीद, अब्दुल कलाम, ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने अपने देश के लिए आहुति दी। जितने भी हमारे मैं एक हिंदू हूँ, परिवार में मैं जन्मा हूँ, लेकिन जितने भी भगवान के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो 99% लोग मुस्लिम राइटर्स ने लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन लोग हैं वो आज के डेट में फिल्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये भाईचारा खत्म हो। तो इससे फाइट करने के लिए हमें ये बहुत जरूरी है कि जो छोटी छोटी फिल्म मेकर्स है, जो सामाजिक मुद्दे पर फिल्म बनाते हैं, उनको सपोर्ट करे, उनकी आवाज इंटरनेशनल लेवल तक लेके जाए, ताकि ये मीडिया का तो दावी तो है ही है, साथ ही साथ ये ऑडियंस का भी कर्तव्य है कि ऐसे फिल्म मेकर को प्रोत्साहन दे, ताकि इनका मनोबल बढ़े और ये और फिल्में बनाए और इनकी फिल्म के पैसे की रिकवरी हो, खास करके ताकि वो और फिल्में बना पाए। इसलिए हम लोग ने इनिशिएटिव लिया है। तो इस मुहिम को कहाँ तक लेकर जाएंगे सर? क्योंकि सरकार तक बात पहुँचानी है, फिल्म को बचाना है, इंडियन सिनेमा को बचाना, तो क्या योजना है आपकी इसके लिए? देखो, सबसे पहली बात तो सरकार कुछ नहीं करने वाली, कुछ नहीं करने वाली, इस मीडिया के सामने बोल रहा हूं। चाहे सरकार सत्ता किसी की भी आए, हर कोई पॉलिटिशियन सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हर एक पॉलिटिशियंस के अकाउंट में 2-2 हजार, 5-5, 6-6 हजार करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन हर कोई बोलता है कि देश को बचाओ, देश को करो, खुद की संपत्ति कोई डोनेट करने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि जो सोशल इश्यू पे काम करने वाले फिल्म मेकर्स है, वो कहाँ कहाँ से इनिशिएटिव लेके ये फिल्में बना रहे हैं। तो ये बीड़ा हमको खुद को उठाना पड़ेगा और हम सरकार पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हमारे पास में कैमरा है, हमारे पास में पेन है, हम कलम उठाएंगे, लिखेंगे, बनाएंगे, मरेंगे तो भी चलेंगे, लेकिन मर के भी इतिहास बना देंगे। सर आपने जो फिल्म सिलेक्ट किया है, 14 फिल्में हो गई आपने, क्या क्या थॉट था, किस तरह का प्रोसेस था फिल्मों को सिलेक्ट करने का? क्योंकि कुछ बताया गया था किस तरह की फिल्में रहेगी, कुछ अपने वो किया था। देखिए, इसके लिए तो हम लोग ने एक स्पेशल जूरी में टीम रखी थी, जिसके अंदर काफी लोग हम लोग ने रखे थे, और ये जूरी टीम का डिसीजन है कि कौन कौन सी फिल्में स्क्रीन होगी इस साल कांस में। ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया है, उसके बारे में बताइए क्या है? ये क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स है, जिसका मकसद ये है कि अगर आप सामाजिक मुद्दे पे फिल्म बनाने वाले शॉर्ट फिल्म मेकर हो, तो आप आगे के प्रोसेस का टेंशन मत कीजिए। चाहे आपके प्रीव्यू की बात हो, मीडिया कॉन्फ्रेंस की बात हो, उसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहुंचाने की बात हो, ये सारी चीजों की स्पॉन्सरशिप सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन ले रहा है। आप सिर्फ फिल्में बनाइए, मोबाइल उठाइए, फिल्में बनाइए, स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दीजिए, आपके कंटेंट पे ध्यान दीजिए, मेकिंग साइड में रखिए। फिलहाल चीज है कंटेंट की, जहां पे 5-5 हजार और जहां पे 100-100 करोड़ की फिल्में पिट जाती है, वहीं पे 2 लाख में बना हुआ क्राइम पेट्रोल का एपिसोड चल जाता है। इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कहानी पे ध्यान दीजिए, स्क्रिप्ट पे काम करिए, पढ़िए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए और फिल्में बनाइए। आगे की जिम्मेदारी सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन पे छोड़िए। ये जो फिल्में आपने सिलेक्ट किया पूरे इंडिया से है कि सिर्फ मुंबई की? ये ऑल ओवर इंडिया से फिल्में आई है। हर विक्रांत मोरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो जिन्होंने हमें मौका दिया कि अपनी फिल्म को लेके यहाँ पे आए और उन्हें दिखाएं और अलग अलग लोगों को उसको दर्शाएं। हमारा मेन मकसद ये था मूवी बनाने का कि नॉर्मली तो लोग कार्बन फुटप्रिंट के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं, पर पानी के फुटप्रिंट के बारे में लोग बात इतनी नहीं करते। तो हमारी फिल्म जो ये है द लास्ट ड्रॉप, ये दर्शाती है कि पानी का फुटप्रिंट भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कार्बन फुटप्रिंट, राइट? नहीं, जो विक्रांत मोरे जी इस तरह का इनिशिएटिव लिया उनके बारे में क्या बताएं? आई थिंक क्रिएटिव माइंड्स ऑफ इंडिया और भारत नेशनल अवार्ड दोनों ही बहुत ही मेरे हिसाब से बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव्स हैं दोनों ही, जो कि लोगों को प्रोत्साहित करेंगे आगे भी इसमें योगदान डालने के लिए। और इसमें मैं काफ़ी श्योर हूँ कि और भी अच्छी मूवीज़। ये जो इनिशिएटिव है जो विक्रांत जी ने लिया है,
वो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स, जो भी अच्छे कंटेंट वाले जो फिल्म मेकर्स हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर या फिर नॉर्मल फिल्म मेकर, बिकॉज इट्स अ सेमी फीचर फिल्म जो हमारी जो है 50 मिनट्स की, ये जो स्टेप है वो राइटर्स को, डायरेक्टर्स को और एक्टर्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो कि अपना टैलेंट दिखाने का वो मौका देती है। एंड दैट इज ऑल आई कैन से। थैंक यू टू क्रिएटिव माइंड्स एंड विक्रांत मोरे। क्या टॉपिक है? ये है, एक मिनट कट करें, ये सब कैमरा चल रहा है सब? ओके, ये भी आया, कोई एडिट नहीं होगा। हाँ तो नहीं, तो मैं सिर्फ यहाँ पे दिख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे पता। हाँ मुझे लगा ये, सर वापस करना है? हाँ नहीं ये वाला वापस करते चलेगा, ये next। एक मिनट सर, सब्जेक्ट क्या आपकी फिल्म का, उसके बारे में बताइए। फिल्म का नाम है माँ लापता। ये एक बेटे और माँ की कहानी है, ये उनके बॉन्डिंग की कहानी है कि जैसे कि आप तो पता है आप लोगों को सबको कि माँ और बेटे की जो बॉन्डिंग होती है एक्चुअल लाइफ में वो अलग ही होती है। और इस फिल्म में ये उस बॉन्ड के बारे में बताया गया है कि माँ और बेटे का जो रिश्ता होता है, क्योंकि क्या होता है कि शादी के बाद भी माँ अपने बेटे को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि माँ के साथ फिर बीवी आ जाती है, फिर और भी कुछ बहुत कुछ होता है, जैसे सास के प्रॉब्लम्स आप सबको पता है जो कि सीरियल्स में आजकल दिखते हैं। बट इस फिल्म में माँ की सैक्रिफाइस के बारे में है कि माँ अपने बेटे को खुश रखने के लिए, बेटे और बहू को खुश रखने के लिए कैसे वो सैक्रिफाइस करती है अपनी लाइफ। दैट्स ऑल। सर स्टोरी में कितना टाइम लगा आपको इस फिल्म को लाने में? इस स्टोरी के लिए मेरे ख्याल से इस स्टोरी ये मैंने 2 साल पहले लिखी थी, और स्टोरी लिखने के लिए तो एक रियल इंसिडेंट था, उस पर मैंने स्टोरी लिखी थी। मैंने देखा कि किसी की माँ कहीं चली गई थी, और वो माँ जाने के बाद वो काफी जगह पे वो ढूंढ रहे थे, जो हमारे नोन कोई पहचान वाले थे, क्योंकि माँ कहीं घूमने फिरने चली गई थी, मतलब ऐसे ही। और वो ये जो माँ की कहानी है, जो माँ कहीं चली जाती है, फिर बेटे को पता नहीं चलता कि माँ कहाँ चली गई है, और फिर माँ मिलती है, बट दैट इज समथिंग दैट इज अ क्वेश्चन मार्क कि क्या हुआ, माँ लापता है। तो सेम वो कहानी को लिखने में और फिर उसके बाद उसको कास्टिंग के लिए मैं एक पर्टिकुलर एक एक्टर को सर्च कर रहे थे, हमारी टीम, कि वो माँ का जो किरदार है वो कौन सी एक्टर प्ले कर सके। तो हमने काफी सारे थिएटर आर्टिस्ट को भी फिर अप्रोच किया, सबको अप्रोच करने के बाद रिहर्सल्स वगैरह की, पर फाइनली और लकीली हमें स्मिता जयकर, जो कि बहुत ही वेल नोन आर्टिस्ट है और काफी सारे कैरेक्टर रोल्स और मेन कैरेक्टर रोल्स कर चुके हैं, मेन रोल्स कर चुके हैं। एंड आई शुड से दैट आई एम रियली लकी टू गेट स्मिता जयकर ऑन बोर्ड फॉर द फिल्म, जिन्होंने माँ का कैरेक्टर किया है। और ये मेरे ख्याल से 3-4 बार कैंसिल करने के बाद, पोस्टपोन करने के बाद ये फिल्म फिर फाइनली स्मिता जयकर ऑन बोर्ड आई और हमने ये फिल्म शूट की। मतलब मेरे ख्याल से कुछ 1-8 साल लगा लिखने और शूट करने। तो इंडिया फिल्म फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो अभियान है, जो अवार्ड फंक्शन है, ये उन मेकर्स को एक बहुत बड़ा जो है मोटिवेशन है, जो मेकर्स स्ट्रगल करते हैं अपनी फिल्मों को लेकर, और उनकी फिल्में रिलीज नहीं हो पाती, उनकी फिल्में अगर थिएटर तक पहुंचती भी है तो उनको प्रॉपर थिएटर रिलीज मिल नहीं पाता है, तो उनके लिए एक अच्छी शुरुआत